All right, good afternoon, Assalamu alaikum, everyone. I hope you're all well, and I hope I am audible to everyone who is in the room currently. My name is Abdullah Jamshed, and I am an associate at Khatana's Law Chamber. I have been a part of this team over the last 9 months, and I will be the moderator for today's webinar that is on the importance of Urdu and Urdu translations of English laws in Pakistan. Before we begin with the session and with our speakers, I would like to give a brief background regarding Khazana's Law Chambers, as we are one of the pioneers of legal training and legal education within Pakistan. Over the last 8 years, since 2017, Khazana's Law Chamber has taken multiple steps in renovating the legal field and legal education and legal training within Pakistan. Multiple trainings, webinars, sessions, practical trainings, our own legal program. All of these steps, inclusive of our managing partner, Mr. Malik Anikali Khatana, filing a petition in the Supreme Court of Pakistan, 6181 of 2020, which basically pioneered the training of lawyers and law students in Pakistan over the last 5 years primarily, in which we had steps into the bar vocational course, the law guard, the C law exams, and all these trainings required for lawyers to now become practicing lawyers and how they're able to get the licenses. With that being said, I would like to introduce our esteemed guest speakers for this webinar regarding the title of the importance of the Urdu language in Pakistan, especially with English laws. At first, we have Mr. Shahid Zahid, who is an advocate of the Supreme Court of Pakistan and is one of the most renowned lawyers that we have. And we're very grateful, sir, that you're able to join us for this webinar. Next, we have Mr. Khurram Zahir, again, an advocate of the Supreme Court who's been in the practice since 2007 and is practicing primarily in the fields of civil and criminal law. Lastly, and not the least, obviously, we have Mr. Mia Haider Ali, who is an advocate of the High Courts of Pakistan, who has been in practice for the last 18 years. Mr. Ali is not only a phenomenal lawyer, he is a trainer for UNODC and CPD. He has been appointed as an amicus for multiple areas on questions of law, and he has been a lecturer at many universities in Pakistan, such as the University of Lahore, UMT, and Canadian University. With that being said, I would like to give a brief background before we get into the gist of this debate. Regarding the status quo of Urdu as a language in Pakistan, being the national language of course, और हम ये भी देखते हैं कि आर्टिकल 251 जिसकी हम आगे जाकर थोड़ी डिस्कशन करेंगे हमारे स्पीकर्स के साथ काफी एक इम्पोर्टेंस ले करती है जब हम इसको कानून की तरफ से देखते हैं और एक लीगल एस्पेक्ट से देखना शुरू करते हैं 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जजमेंट पेश हुई थी जस्टिस जवाज ख्वाजा की तरफ से जिसने काफी ज्यादा क्वेश्चंस एक तो रेस किए थे और काफी रिफाइन कर दिया था इस आइडिया को कि उर्दू किस किस तक इस्तेमाल होनी चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने पे क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. With that being said, and we will now get into the main issues of this debate, I would like to start off this debate, and I would like Mr. Shahid Zahir to please address the first question for this webinar in the importance of Article 51 और सर कि कितनी एक अहमियत पेश होती है पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर उर्दू जुबान सारे जिसे आप बोलते हैं उनके लिए इंग्लिश लॉस पढ़ना एंड उसमें से क्या डिफिकल्टीज पेश आती हैं जनरल पॉपुलस को इस नाइली की वजह से कि ट्रांसलेशंस या फिर आपके पास वी कैन से बहुत अडेप्ट नॉलेज अवेलेबल नहीं है इन लॉस के बारे में बिकॉज दे आर प्राइमरली इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश नॉट उर्दू सो इफ यू कुड हैव योर गाइडेंस ऑन दैट प्लीज. मेरी आवाज आपको आ रही है क्योंकि मैं इससे आगाह नहीं कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर जा रही है कि नहीं. जी जी सर यू आर ऑडिबल. काइंडली इन्फॉर्म मी कि मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है आपको. यस सर यू आर ऑडिबल. थैंक यू. जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उर्दू का बतौर लैंग्वेज लीगल एजुकेशन में इम्पैक्ट और हमारे अदालती निज़ाम में बतौर लैंग्वेज इसका राज किया जाना और इसके जो आईनी तकाजे हैं वो क्या है. तो सबसे पहले मैं इस पर गुजारिश करूंगा कि हमारा आईन पाकिस्तान जो कि 1973 में बनाया गया
उसका एक बहुत अहम आर्टिकल, आर्टिकल 251, 251, इस बात को एड्रेस करता है और बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी बारीकी के साथ, बहुत रिफाइन तरीके से इस इशू को एड्रेस करता है। आर्टिकल 251, जिसमें हम टेक्निकलिटीज को और उसकी जुजवियात को और उसकी वो बातें जो कॉमन मैन से जरा दूर और लीगल फर्टेनिटी से जरा करीब है, मेरा ख्याल है कि उनको अवॉइड करते हुए बहुत सादा जुबान में इस पे बात करें। तो मेरी गुजारिश ये है कि आर्टिकल 251 में बहुत बारीकी से इस इशू को एड्रेस किया गया। नंबर वन, वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमारी जो कौमी जुबान होगी पाकिस्तान की, इस आईने पाकिस्तान के तहत वो उर्दू होगी। साथ ही जो प्रैक्टिकल मसाइल थे उस दौर में, उनको एड्रेस करते हुए आइन के आथर्स ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक इसका मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर दिया जाता और इसका मुनासिब इंतजाम नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक दफ्तरी जुबान के तौर पे इंग्लिश को राइज रखने में कोई हर्ज नहीं है। इससे भी अगले स्टेप पे जाके आइन बनाने वालों ने, आइन के आथर्स ने ये बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इस कौमी जुबान जो कि ऑब्वियसली उर्दू है, वो मुकम्मल तौर पर कौमी जुबान बनाने के लिए और राइज करने के लिए आईने पाकिस्तान के तहत 15 बरस का अरसा दिया जा रहा है। और इन 15 बरसों में सरकार और स्टेट वो अरेंजमेंट करेगी, वो इंतजाम करेगी जिसके तहत कौमी जुबान का राइज किया जाना यकीनी बनाया जा सके। इसकी मजीद वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि इस अरसा में कौमी जुबान का ना सिर्फ तालीम में राय किया जाना जरूरी है, बल्कि जो दफातर हैं उनके अहकामात, ऑर्डर्स, बिल्स, हत्ता के जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मुकाबले के इम्तहान, हर जगह इस जुबान को राइज और इनकरेज किया जाए। साथ ही साथ वाज़ेह तौर पे आइन में ये हदायत दी गई कि गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स, सरकार के ओहदेदार और सरकारी अफसरान अपने जितने भी सरकारी खुतबात और खिताबात हों वो कौमी जुबान में उसको ऑप्ट करें और कौमी जुबान में करें। इन हदायत की रोशनी में आइन ने ये 15 बरस का टाइम दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली 15 बरस गुजार कर हम 75 बरस तक आ गए और इस कौमी जुबान को कौमी जुबान के तौर पर ना तो हम नाफज कर सके और ना ही रायत कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारा अदालती निज़ाम, जो कि हमने कॉलोनियल सिस्टम से हायर किया था और हमें विरासत में मिला था, हमने एज इट इज उसको ऑप्ट किया और एज इट इज उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कागजी तौर पे तो ये लिखा हुआ है इनमें आर्टिकल 251 में कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है, मगर थ्रू आउट इसको अवॉइड किया जाता है। और अगर थोड़ी सी तहकीक से देखा जाए तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये डेलिबरेटली अवॉइड किया जाता है। इसीलिए कौमी जुबान से मोहब्बत करने वालों ने और उर्दू से मोहब्बत करने वालों ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जो अब बाकायदा लॉ की सूरत में PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट सफा 401 में रिपोर्ट हो चुकी है, जो जनाब जस्टिस जवाद एच खाजा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस दौर में, उनकी क्यादत में बेंच ने ये जजमेंट दी। ये जजमेंट उर्दू के लफ्ज और कौमी जुबानों के तौर पे उर्दू की अहमियत के तौर पे एक तारीखी दस्तावेज है। मैं समझता हूँ कि उर्दू पढ़ने वाले और अंग्रेजी पढ़ने वाले दोनों तबकात, क्योंकि ये जजमेंट हर दो जुबानों में लिखी गई है, अगर इस जजमेंट को पढ़ लें और खुलूसे दिल से और खुलूसे नियत से पढ़ लें तो वो तमाम मंदरजात और तमाम हकायक खुल के सामने आ जाते हैं। ये ये जजमेंट लॉर्डशिप को जनाब वादस खाजा साहब ने लिखी है, जिसमें उन्होंने
जुबानों की एक तारीख को ब्रीफ करके इस जजमेंट में समझ दिया गया है। मेरा ख्याल है अगर बात तो थोड़ी आगे चलेगी तो फिर इस पे भी वजाहत से बात हो जाएगी कि किस तरह जो कॉलोनियल निजाम राज करने वाले या मुसल्लत करने वाली ताकतें जब दूसरे मुल्कों में जाके कब्जे करती हैं और इन्वेडर के तौर पे वहां पे मुसल्लत होती हैं, तो सबसे पहले उनका टारगेट वहां की पब्लिक को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करना और उनको कमतरी का एहसास दिलाना होता है। ये तारीख बहुत बारीकी से जस्टिस जवाद ख्वाजा ने इस जजमेंट में डिस्कस की है कि किस तरह रोमन्स जब यूरोप में कब्जा करके आए, उन्होंने यूरोप की जुबानों को कुचल के वहां पे रोमन्स का रोमन राज कर दिया। इसी तरह हमारे यहाँ संस्कृत पंडितों की और ब्राह्मणों की जुबान राय थी, और मुगलों के आने से पहले सब कुछ इसी जुबान में होता था। फिर जब मुगल आए तो उन्होंने संस्कृत को और इस जुबान को अवॉइड करके और इसको छोड़ के यहाँ पे फारसी राज कर दी। हालांकि फारसी इस इलाके की, हिंदुस्तान की जुबान नहीं थी। फिर यही कुछ तारीख के अगले सफात पे जब अंग्रेज सरकार यहाँ पे आई, जब गोरों ने इस खित्ते पे कब्जा कर लिया, तो गोरों ने आके सबसे पहले फारसी को उठा के साइड पे रख दिया और अंग्रेजी जुबान को मुसल्लत कर दिया। और सारे मामला, क्योंकि जो काबज होते हैं, जो आसानी सर रहती मैं है। इफ आई मैं अक्सर सवाल इसमें पूछ सकूं जो आप बात बिल्डअप कर रहे थे। जी जी। जैसे हम देखते हैं आपने मल्टीपल मेंशन किए हैं, आपने फारसी और फिर उससे ट्रांजिशन कैसे हुआ मुगल एरा से कॉलोनियल एरा के ऊपर साथ में। तो हम देखते हैं कई ममालिक है जैसे फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी हो गया, जो अपनी कौमी जुबान को, फ्रेंच और जर्मन को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर लॉफुल पर्पसेस, अपने कानून में बात करने के लिए, जजमेंट को लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड आई वुड एड्रेस दिस क्वेश्चन टू मिस्टर अली हैदर एज वेल। सर आपका क्या ओपिनियन बनता है इस बात पे कि इंस्टेड ऑफ ए बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल सिस्टम जिस तरह पाकिस्तान में है आपका उर्दू का और इंग्लिश का प्राइमरली, सिर्फ एक स्विफ्ट चेंज लाना और पूरे सिस्टम को उर्दू पे चेंज कर देना, ये कोई बेनिफिशियल सिस्टम या बेनिफिशियल बात बन सकती है या फिर ये डेंजरस गेम है खेलनी इस तरह की डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ? सर इफ यू कुड प्लीज, सर यू म्यूटेड प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कटाना लॉ चैम्बर फॉर इनवाइटिंग मी, और इस इतनी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के अंदर इनवाइट करने के लिए। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कटाना लॉ चैम्बर्स के साथ, और वो भी इतने थिक टॉपिक के ऊपर। बट शायद जहीर साहब ने जो बात की है बड़े अदब से, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हुए, अगर आपने उर्दू को एज राइजुल वक्त जुबान, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान की इंसेप्शन से लेके आज तक इसकी जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग, रीजनल इम्पैक्ट, इन तमाम चीजों को भी देखना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान जब व्हेन इट केम टू एग्जिस्टेंस, 54% ऑफ द होल पार्ट जो पॉपुलेशन वाज फ्रॉम बंगालीज। तो दे हैड अ वेरी गुड केस, उनका बहुत अच्छा केस था कि जी बंगाली को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए या नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। इसी तरह फिर आपकी रीजनल जुबानें जिसमें पंजाबी बहुत ज्यादा हैं और डिफरेंट जुबानें हैं। अलबत्ता इस थ्रू एंड थ्रू पूरे प्रोसेस के अंदर अगर कोई बंदा इस बात पे कंसिस्टेंट परसिस्टेंट था कि उर्दू ही आपकी लैंग्वेज होगी, वो थे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और वो इस बात पे कंसिस्टेंट रहे कि जी उर्दू ही आपके पास रहेगी। अच्छा, अब उर्दू के टॉपिक को समझने के लिए आपको हिस्टोरिकली अपनी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ सेट्स के अंदर इसको मैं डाइसेक्ट करता हूं। फॉर इंस्टेंस, एक पोजीशन आपके पास है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 251 इंसर्ट होने के बाद की, और एक है उससे पहले की। पहले की डिबेट के अंदर अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को देखें, तो हमने सारे के सारे जितने भी कॉलोनियल लॉज थे, यानी आपने पहला वर्किंग मैकेनिज्म जो प्रोवाइड किया इस रियासत पाकिस्तान को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था।
और उसके बाद जितने भी सीआरपीसी को देख लें, पीपीसी को देख लें, डिफरेंट लॉज को देख लें, सिर्फ उनके अंदर शायद किसी जगह पे पाकिस्तान ऐड कर दिया हो, अदरवाइज वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही रहा, वो एविडेंस एक्ट ही रहा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह चलता रहा। बड़े अदब के साथ सारे तालिब इल्म हैं, और शाहिद साहब की मौजूदगी में मेरा आर्टिकल 251 से एक बहुत शदीद इख्तलाफ है। ये आर्टिकल ही कंफ्यूज आर्टिकल है। अगर इस आर्टिकल की लैंग्वेज को जब आप देखते हैं तो आर्टिकल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन आपको ये बताता है कि जी उर्दू आपकी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। दूसरे आर्टिकल के अंदर 251 सब आर्टिकल 2 के अंदर वो कहता है नहीं, लेकिन आपकी जो वर्किंग लैंग्वेज होगी, आपकी जो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज होगी, वो इंग्लिश होगी। और इसी आर्टिकल के तीसरे आर्टिकल के अंदर वो कहता है हाँ, इसके साथ साथ जितनी भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो प्रमोट और अपना रोल प्ले करेंगी, किस चीज के लिए? उर्दू को एज नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए दिस आर्टिकल इज वेरी कंफ्यूजिंग। अच्छा, दूसरा, अगर आपने इस आर्टिकल का तकाबली जायजा करना है पीएलडी 2015 हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की जजमेंट के साथ, इन स्पिरिट इन लेटर, उनकी जजमेंट बहुत अथॉरिटेटिव और हमारे लिए बाइस तालिब इल्म कानून के वो एक बाइंडिंग हैसियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ इज द जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स। उसके अंदर उन्होंने ये तमाम चीजों को देखा, डिस्कस किया, और ये सारा का सारा इसको देखा। मैं काउंटर के तौर पे एक आर्ग्यूमेंट रखता हूं कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये कहूं कि अगर हम बायलिंगुअल रह के एफिकेसी ऑफ लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट। हाँ, एक सवाल जरूर खड़ा होता है, और वो सवाल ये खड़ा होता है कि जो कवानीन बनते हैं, जो फैसला जात आते हैं, उसका जनरल पॉपुलस को अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक जो आपका आईन पाकिस्तान है वो उर्दू में अवेलेबल है। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक जितने भी आपके वर्किंग लॉज हैं वो सारे के सारे तकरीबन उर्दू में अब अवेलेबल हैं, जो कि शायद इस जजमेंट से पहले अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि जब आप लॉयरिंग की बात करेंगे तो उर्दू के लिए आपका डोमेन और टारगेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब आप जनरल पब्लिक की बात करेंगे तो उर्दू के लिए आपका टारगेट और डोमेन बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी एक जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो उर्दू में अवेलेबल है। अच्छा, फिर दूसरी सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिस तरह इसी इसी आर्टिकल के अंदर उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकली इवैल्यूएट अगर इसको किया जाए तो बहुत ज्यादा रीजनल पॉकेट्स के ऊपर बेस करता है, और कॉलोनियल रूल की वजह से अगर कोई वन कॉमन लैंग्वेज इमर्ज होके आती है तो वो अंग्रेजी जुबान है। बट दैट डज नॉट मीन कि हमारा कोई इश्क मोहब्बत है उस जुबान के साथ। वो उसी तरह से चलता हुआ आया जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे लेजिस्लेटर्स का काम था, इसके ऊपर काम करते, इन लेजिस्लेशंस को लेके आते। दो मुल्कों की आपने हवाला दिया, जर्मनी और फ्रांस का, मैं आपके सामने चाइना भी रख देता हूं, मैं आपके सामने उसके बाद और बहुत सारी रीजनल, यानी आप अगर इंटरनेशनली देखें तो अपनी जुबानों के अंदर मौजूद उनके कवानीन भी हैं, उनकी तालीम भी सारी की सारी है। बट वहां पे उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर इतना इनरिच था कि वहां के लेजिस्लेटर्स ने इनके ऊपर काम किया। हमारी तरफ से एक वकील का काम सिर्फ जो अवेलेबल चीज है उसके मुताबिक ऑपरेट करना होता है। ये असल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1973 के बाद जो टाइमलाइन इसके अंदर प्रोवाइड की गई वो 15 साल है। सो अगर आप 15 साल की ब्रैकेट को भी निकाल दें तो जवाद एस ख्वाजा साहब की जजमेंट 2015 में आती है। उससे पहले और उसके इन बिटवीन कि आपको वो गैप मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारे यहाँ उर्दू जुबान का वर्किंग मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई दफा डॉक्टर बासित साहब की पिटिशंस उर्दू जुबान में भी देखी हैं, मैंने उनको उर्दू में आर्ग्यू भी करते हुए देखा है, और इसी तरह बहुत सारे और लॉयर्स भी हैं। बट इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है अगर आपने पब्लिक की अवेयरनेस के साथ, तो फिर डोमेन बनता है लेजिस्लेटर्स का। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जवाद ख्वाजा साहब की जो जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने कहा कि चारों गवर्नमेंट्स ने हमें कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की। फिर उन्होंने अपने रिसर्च ऑफिसर को कहा कि आप रिसर्च करके बताएं कि हमारे रीजन के अंदर, यानी इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो इस अपनी लैंग्वेज को
कॉलोनियल लैंग्वेज के साथ किस तरह एसोसिएट कर रहे हैं। तो इसी जजमेंट के अंदर आपको मिलेगा कि वो बताते हैं कि उन्होंने अगर कोई लेजिस्लेशन पास हुई है तो उसके साथ उनकी नेशनल लैंग्वेज के अंदर बकायदा एक कोड बना हुआ है जिसको क्रोनोलॉजिकली अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा गया हुआ है। तो वो अवेलेबल है। अगर फॉर इंस्टेंस सीआरपीसी है तो वो आपको वो बंगाली जुबान में मिल जाएगी, हिंदी जुबान में मिल जाएगी। अभी इंडिया ने रिसेंटली 2023 के अंदर पूरा का पूरा अपना क्रिमिनल लॉ का मैकेनिज्म चेंज किया पूरा। और उन्होंने किया बेसिकली वही है जो जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में किया था। और वो क्या किया था, सिर्फ ऊपर टैगलाइन वाला नाम भारतीय सन या समथिंग करके उन्होंने कर दिया, अंदर अंग्रेजी ही है। अंदर मेजोरिटी ऑफ द सेक्शंस वो कॉलोनियल लॉर्ड मैकॉले के ही लिखे हुए सेक्शंस को थोड़ा सा मेकअप पॉलिश करके उन्होंने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया। सेम इज द केस पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान कोर्ट के अंदर आपको बहुत सारी लेजिस्लेशंस मिल जाएंगी जो पैरेलल तौर पे उर्दू के अंदर बनती भी आ रही है। इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा इंटरवीन करके मैं एक सवाल आगे फॉलो अप करूं, एंड आई विल एड्रेस दिस टू मिस्टर खुरम जहीर एज वेल। जैसे आप मेंशन हम कर रहे हैं जैसे जवाज ख्वाजा की जजमेंट के बारे में, उसमें एक काफी डायरेक्टिव मिला हुआ था कि आपने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पोर्शन पे आती हैं पिटिशंस और उनकी जो एक्सेप्टेंस होती है, एंड डिसीजन उनमें एंड में आता है, दे हैव टू बी पास्ड इन दी नेशनल लैंग्वेज उर्दू के अंदर एज वेल। तो सर माय क्वेश्चन इसमें थोड़ा हाइब्रिड सा बनता है कि विद नेशनल लैंग्वेज एज उर्दू कितनी इंपॉर्टेंस रखती है जो आपकी प्रोविंशियल लैंग्वेज है, बिकॉज उनकी अपनी एक कल्चर, उनका अपनी हिस्ट्री, उनकी अपनी एनरिचमेंट है। तो एंड मिस्टर खुरम प्लीज डू रिस्पॉन्ड टू दिस कि उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है कि ना सिर्फ उर्दू को हम उस तरह से प्रमोट करें, बट बाकी जितनी आपकी नेशनल प्रोविंशियल लैंग्वेज हैं, आपकी पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड ऑल द अदर वंस की, उनकी कितनी आपने इंपॉर्टेंस करी, उनका कितना आपने प्रोटेक्ट करना है साथ में, विद दिस आइडिया के वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है उसकी जो इंपॉर्टेंस और वैल्यू है। मिस्टर खुरम प्लीज। ऐसे है कि हम लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, तो लाहौर के आप थोड़ा सा सराउंडिंग्स में देखें तो वहाँ पे सारी जो ड्राफ्टिंग होती है वो उर्दू में होती है। जैसे कि आपके लाहौर के पास शादरा है, शादरा से फरोजवाला, शेखुपुरा, कसूर है, बिल्कुल 30 किलोमीटर का फासला है में। तो वहाँ पे जितनी ड्राफ्टिंग होती है सारी उर्दू में होती है। उसके बाद जैसे आपके सिविल दावे हैं, आपकी बच्चों का मेंटेनेंस है, खुला के केसेस है, सब उर्दू में होते हैं। मसला ये आता है जब जजमेंट पास होती है, जब डिग्री पास होती है, वो सब इंग्लिश में पास होती है। जो साहिल होता है उसको समझ नहीं आती, उसने तो अपना केस दिया वकील को, वकील ने आर्गू किया, उर्दू में किया, इंग्लिश में किया, उसको समझ आ गई। जब जजमेंट पास होती है, जब डिग्री पास होती है, तो वो समझता नहीं है, वकील बताता है उसको समझ नहीं आती है, वो फिर दूसरे वकील के पास जाता है पूछने के लिए। तो जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है ना, वो फाइल की जुबान होनी चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हमारा लॉ भी कहता है कि जो जुबान है फाइल की, जो कंप्लेनेंट है या मुद्दई मुकदमा है, वही जुबान कोर्ट की होनी चाहिए। ऐसा होता भी है। मेरे केस में था एक था क्वेटा से, एक कत्ल का केस था। तो उसमें जो एविडेंस जिसने देनी थी, जो चश्मदीद गवाह था, वो पश्तो था, पख्तून था, उसको उर्दू आती नहीं थी। वो बाप के साथ ट्रक पे लाहौर आया, सब्जी मंडी में, वहां पे उसका बाप कत्ल हो जाता है। वो आई विटनेस था वहां पे, चश्मदीद गवाह था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, बेचारा बता नहीं सकता था। जब एविडेंस के लिए आ गया केस, तो हुआ ये कि जब उसे सवाल पूछा वकील साहब ने, उसको कहा, उसने कहा जी मुझे तो आती कोई नहीं है। अब पूरी लाहौर की सेशन कोर्ट में ये मसला बन गया कि पूरी सेशन कोर्ट में किसको आती है कोयटा की जुबान। तो वहां पे एक स्टेनो था जो बचपन में कोयटा में पढ़ा था, उसके वालिद वहां काम करते थे, उसको आती थी वो। तो कई हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद उसको हमने बुलाया, कोर्ट की परमिशन ली, कोर्ट ने उसको असेसमेंट की उसकी। उसके बाद उसकी एज अ ट्रांसलेटर उसे काम किया। लेकिन अब हमें ये मसला आ रहा था, वकीलों को, जजेस को ये मसला आ रहा था कि जो हम उससे सवाल कर रहे हैं वाकई वो एग्जैक्टली उसी तरह का सवाल उससे पुट कर रहा है, या वो जवाब दे रहा है, वो जो इंटरप्रेटर है वो हमें उसी तरह का जवाब लिखवा रहा है। तो हमने ये देखना है कि जो मैंने तो सिंधी में भी देखी, एफ आई आर हुई हुई है। आप आप खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, वहां पे आप उर्दू बोलेंगे तो आपको तो वो कम से कम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो रीजनल लैंग्वेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उर्दू में बात करते हैं। आप सिंध में चले जाएंगे, वहां पे उर्दू को नहीं बोलेगा, सिंधी बोलेंगे। वहाँ सिंधी लिखी जाती है, सिंधी बोली जाती है, सिंधी पढ़ाई जाती है। पंजाब में ना पंजाबी पढ़ाई जाती है।
और बीए में कोई एक सब्जेक्ट होता है, कोई पंजाबी का रख ले, ऑप्शनल सा होता है कोई। अदरवाइज तो प्रमोट तो है ही नहीं लैंग्वेज का यहाँ पे हमारे पास किसी भी किस्म का। तो देखना ये है कि हमारे जो बेसिकली जो हमारी जजमेंट है ना, वो हमारे पूरे एक सिनेरियो के ऊपर है। खाली ये हमारे कोर्स के ऊपर नहीं बाउंड करती, वो हर जगह पे करती है। तो जैसे भाई बात कर रहे थे कि जी चाइना है और जर्मनी है, तो मैं आपको रशियन प्रेसिडेंट की बात करूंगा। जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बादशाह आते हैं पाकिस्तान में आते हैं, वो साथ ट्रांसलेटर लेके आते हैं, वो अपनी जुबान में बात करते हैं। अब चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आता है, वो अपनी जुबान में बात करता है, के साथ ट्रांसलेटर होते हैं। तो हम एज अ कॉम बने नहीं कभी। 70 सालों से गोरों का जो बनाया सिस्टम है, हम उसके ऊपर चलते आ रहे हैं, और उम्मीद है कि हम चलते रहेंगे। हमारी सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले। मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा इंग्लिश बोले, मेरी बेटी इंग्लिश बोले। ठीक है ना। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। हम इसको कहते हैं कि ये जो है ना, ये एक ऐसा है कि ये आपका माइंड को चेक करता है कि आप कितने कम्पिटेंट है इंग्लिश। हम जज करते हैं कि जो बंदा इंग्लिश बोलता है वो बहुत कम्पिटेंट है। हमारे जब पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं, हमारे जो खारजा थे बिलावल भुट्टो, वो इंग्लिश में तकरीर करते हैं। और भी कुछ ऐसे हैं जो करते हैं। तो वो तो हम आवाम के नुमाइंदे हैं, और हमें तो उनकी समझ नहीं आती। अगर आप कभी सिंध का देखें ना, सिंध असेंबली का इजलास देखें, तो वहाँ पे सिंधी बात बात की जाती है। सिंधी में बात करते हैं जो उनके वहाँ के जो नॉमिनेटेड नुमाइंदे हैं। हमारे यहाँ पे अगर पंजाबी में बात कर ले तो उसको हम बुरा समझते हैं। उर्दू में बात कर ले तो हम कहते हैं लो जी, ये जो है ये बंदे कम एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। अगर हम सूटी बूटी ना हो, हम शलवार कमीज पहन के चले जाएं किसी अच्छी जगह पे, तो वो हमारी रिस्पेक्ट में कमी आती है। तो हमने पूरा माइंड सेट चेंज करना है, खाली उर्दू पे काम नहीं करना। हमने एजुकेट करना है अपने बच्चों को भी, और इस मुआशरे को भी करना है। कि जो आपकी जो मादरी जुबान है, वो बड़ी एक की पॉइंट होता है आपके ऊपर। अभी कोई, अब जैसे मैं हूँ, जाता हूँ बच्चों के स्कूल में जाता हूँ, टीचर मुझसे उर्दू में बात नहीं करती, इंग्लिश में बात करती है। मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ उर्दू में, तो वो मुझे देखते हैं कि इतने बड़े स्कूल में बच्चा पढ़ा है, उस बाप को इंग्लिश नहीं आती। तो वो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे एक पीछे से चलती आ रही है। हमने पहले एजुकेट करना है। अगर उस इंग्लिश का जवाब मैं उर्दू में दूंगा ना, तो वो फिर वो कंप्लेन होती है कि जी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो आपके जो फादर थे वो उर्दू में बात कर रहे थे, पंजाबी में बात कर रहे थे। देखिए, जब स्कूल में ये बचपन से चीजें बतानी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज क्या है। अब मेरा बेटा जहाँ पढ़ता है, वहाँ पे वो बता रहा था कि जी एचिसन कॉलेज में पढ़ता है बेटा मेरा। वो कहता हमें अलाउ ही नहीं है उर्दू में बात करना। इवन होम टाइम में भी, ब्रेक में भी अलाउ नहीं है। तो घर में वो माहौल मिलेगा नहीं। घर में तो पंजाबी मिलेगी, दादी भी है, नानी भी है, सारे पढ़े लिखे तो नहीं होते हमारे। तो ये हमने रूट्स लेवल पे काम करना है पहले, कि हमारे बच्चे जो हमारी जो जुबान है उस पर फोकस करें। उनको बताया जाए कि भाई ये आपकी जुबान है, ये आपका कल्चर है। अगर हम घर पे इस पे काम नहीं करेंगे, तो इस तरह की डिबेट्स का तो फायदा ही कोई नहीं है। मैं खुद जानबूझ के अपने बेटे से पंजाबी में बात करता हूँ। कल को वो गाँव जाए, किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसको लैंग्वेज का मसला ना है। हाँ, बोल ना सके, कम से कम अंडरस्टैंड तो करे। तो ये चीजें सारी है कि ये मुश्किल चीजें है कि इंग्लिश को अगर आप ऑल्टरनेट उर्दू पे लेके जाए, तो ये नामुमकिन बातें हैं सारी। इंग्लिश का जो रोल है ना, ऑल ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये वर्ल्ड की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अपनी जुबान को हम प्रमोट कर सकते हैं, और हमें प्रमोट करना चाहिए अपने घर से पहले स्टार्ट करें। जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा इंग्लिश बोले, अब बोलता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो वो बर्गर बच्चे और मम्मी डैडी बच्चे और एक हमारा स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है ना, तो हमने इस चीज से बाहर निकलना। तो खाली ये कोर्ट की बात नहीं कि कोर्ट में लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। अब होता ही ये है, एक बहुत मजे की बात है। अब कोर्ट्स में जो शॉर्ट ऑर्डर्स होते हैं उर्दू में लिखे जाते हैं, हम भी पढ़ते हैं। और आप यकीन करो, ऐसे ऑर्डर्स लिखे जाते हैं कि आप उनको पढ़ ही नहीं सकते। अब मेरे भाई यहाँ पे सीनियर भी बैठे, जहीर साहब बैठे हुए हैं, दूसरे भाई थे, ये भी इसको करते हैं, आप भी करोगे कि आप उसको उर्दू में लिखे जाते हैं ऑर्डर्स, और आप ऑर्डर्स को पढ़ नहीं सकते। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने तजर्बे पढ़ सकते हैं। एक मजे की बात बताऊं, 2007 में एक ऑर्डर पास किया एडिशनल सेशन जज ने। उस टाइम मैं जूनियर लॉयर था। तो मेरे सीनियर ने कहा, यार ये पढ़ो, ये लिखा क्या हुआ है।
लिखा उर्दू में था, मुझसे भी नहीं पढ़ा गया। कहते जाओ रीडर के पास जाओ, उससे पूछ के आओ। वो एडिशनल सेक्शन जज का रीडर था, उसके पास मैं गया। मैं कहा भाई ये लिखा के मुझे बता दो। मेरे सीनियर सीनियर ने पूछा मुझसे। उसने कहा यार मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, जज साहब से पूछते हैं। वो पेपर जज साहब के सामने रखा था, ये आपने ऑर्डर के पास किया, हमें बता दिया। आगे से उन्होंने पंजाबी में कहा कि बेटा गिला गिला हुए तो मैं पढ़ सकना है, बाद में मैं भी नहीं पढ़ सकता। तो बात ये है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अमल नहीं करना। अगर आपने लिखना भी है तो साफ लिखना है, बेहतर लिखना है। वो लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडिंग भी हो, राइटिंग में भी हो और बोलने में भी हो। बस उर्दू पे डिबेट करना चाहिए, उर्दू पढ़ाई जाए और सुनाई जाए, उसको लिखा भी जाए और बेहतर अंदाज में लिखा जाए। जी सर, बात आपकी बहुत रेलेवेंट है। आई थिंक पाकिस्तान में ना वैसे भी एक बड़ा कल्चरल डिवाइड और एक आइडेंटिटी क्राइसिस बना हुआ है लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर। Hello everyone, my name is Mohammad Adil and I am an intern at Khatanas Law Chamber. मेरा ये क्वेश्चन था सर शाहिद जहीर से कि अभी हम लोग बात कर रहे थे जस्टिस जवाद ख्वाजा की जजमेंट के हवाले से जो 2015 में आई। अब उसमें ये जिक्र है कि ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25 की नॉन कंप्लायंस भी हो रही है। तो सर प्लीज आप इस पे थोड़े से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग एक ये चीज और दूसरी ये चीज कि हम लोग ये सारी आज डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग को एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बेसिकली जजेस जो हैं हमारे, वो हमसे उर्दू नहीं सुनना चाहते। इवन हम लोग कोर्ट्स में जाते हैं तो हमें ये फील होता है कि दे आर मतलब दे आर नॉट गिविंग अस रिस्पेक्ट अनलेस एंड अनटिल वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो आप इसका थोड़ा सा सर, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज इसका थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि ये एक पर्सपेक्टिव और दूसरा वो जजमेंट के हवाले से आपका क्या थॉट्स हैं। दो चीजें रह गई पहले पोर्शन में जो मैंने गुजारिशात की थी। फर्स्ट ये कि लैंग्वेज एक और चीज है और उसका इम्पैक्ट और एप्लीकेशन एक मुख्तलिफ चीज है। और इस जजमेंट में जो जस्टिस ख्वाजा ने लिखी, इसमें उन्होंने फरमाया है और बड़ी डिटेल से कहा है कि उर्दू को नाफिज करना कोई ग्रेस नहीं, कोई एहसान नहीं, और कोई सिर्फ कोई ऐसा नजरिया जरूर भी नहीं, बल्कि इट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब दूसरी बात पे आ जाए, जो आपका सवाल है ना कि जब हम कोर्ट्स में जाते हैं तो उसको ज्यादा पजीराई मिलती है। मैं क्योंकि उर्दू मीडियम बंदा हूँ, मुझे ये लफ्ज ज्यादा अच्छा लगता है, उसको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी जो भाई बात कर रहे थे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हम बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं और फिर उस इंग्लिश की पजीराई होती है, हम तो घर में भी नहीं बोलते। अब मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ। मैंने स्टार्ट इसी से किया था कि एक कॉलोनियल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उन सोसाइटीज में जो गुलामी में रही होती है। आई एम वेरी क्लियर कि ये हमारे ऊपर एक कॉलोनियल इम्पैक्ट है, जो हम सदियों गुलामी में रहे गोरे की। जब हम आजाद भी हुए तो फिर हमने, ये भी मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज है और नॉलेज एक डिफरेंट चीज है। मैं उससे थोड़ा और ऐड करता हूँ कि लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज है, नॉलेज एक डिफरेंट चीज है, और विजडम एक तीसरी चीज है। अब हमने उस कॉलोनियल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तहत नीचे से लेके ऊपर तक ये तय कर लिया और ये उसूल बना लिया कि जो इंसान बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बोलता है, क्या बात है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट। अब यही इम्पैक्ट हमारी अदालतों के ऊपर भी आया। जस्टिस ख्वाजा ने, अब ये बात मैं करूं तो मेरे ऊपर ये एक ठप्पा लग सकता है कि भाई इस बंदे को अंग्रेजी नहीं आती इसलिए ये बात करता है। लेकिन जस्टिस ख्वाजा ने बहुत डिटेल से इसी जजमेंट में लिखा कि हमारी जुडिशरी के ज्यादातर लोगों को अच्छी इंग्लिश नहीं आती। अब इसी जजमेंट में लिखा हुआ है। उसकी रीजन क्या है कि हम इंग्लिश को सीधा करते करते ना हमारे पास नॉलेज आता है, ना विजडम आता है, ना कॉम्पिटेंसी आती है। सारा जोर हम डिग्री देने पे और उसके बाद उस लैंग्वेज की एप्लीकेशन पे लगा देते हैं। जरा गौर करें, जब हम अदालतों में जाते हैं तो एक लाइन और मैं क्लियर करूंगा कि हमारे चारों सूबों में और आजाद कश्मीर में
उर्दू वाहिद लैंग्वेज है जो ग्वादर से लेके लाहौर तक और सियाचिन तक, हर जगह, ये इन सारी जगहों पे अक्सर लोगों ने ट्रेवल किया होगा, मैंने भी किया है। कहीं ये मसला पेश नहीं आया कि पश्तो जानने वाले और हिंदी को जानने वाले और बलूची जानने वाले उर्दू में बात करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन चारों सूबों में और आजाद कश्मीर में इंग्लिश को समझने वाले कितने लोग हैं? अगर इसमें सर्वे करवा लें तो वो 5% भी नहीं निकलेंगे। तो हमारा विटनेस जब विटनेस बॉक्स में पेश होता है तो वो अपनी मुकामी जुबान में बात करता है। हमारे विटनेस जो अभी बहुत खूबसूरत बात की मेरे भाई ने, क्रिमिनल साइड पे जो पेश होते हैं वो पंजाबी में आके अपनी शहादत दे रहे होते हैं, हम उनको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, फिर जैसा बड़ी मुश्किल से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो 3 जुबानों में ट्रांसलेट होके वो एक एविडेंस बनती है। फिर उसके बाद जैसा आप उर्दू में सोचते हैं और इंग्लिश में जजमेंट लगवाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इट इज इम्पॉसिबल टू अप्लाई उर्दू थ्रू आउट ए लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी? मैं अपनी 38 साल की वकालत के बाद बहुत इत्मीनान से ये कह सकता हूं कि थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम दी बॉटम, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, ऐसा कोई लफ्ज नहीं जिसकी उर्दू अवेलेबल ना हो। हम उर्दू में बात कर सकते हैं, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, डॉक्टर बासत मरहूम थ्रू आउट उर्दू में बात करते थे और उर्दू में ही ड्राफ्टिंग करते थे और सुप्रीम कोर्ट में ही भी जाके उर्दू में आर्गूमेंट्स करते थे। अब तो आप लाइव सुन रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या वहां उर्दू में आर्गूमेंट्स नहीं होते? अब एक क्वेश्चन जिसको मैं बड़े ढंग से एड्रेस करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि जैसा आप लिखते हैं और वो पढ़ा नहीं जाता। सर, वो लैंग्वेज का कसूर नहीं है, वो जुबान का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो प्रॉब्लम है एक ज़ईफ हैंड राइटिंग में पेन से लिखने का। अब वही जैसा अब जब ऑर्डर डिक्टेट करवाते हैं तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश में टाइप करता है, 1.5 सेकंड में बहुत खूबसूरत अंदाज में कंपोज होकर निकलता है। अब अगर वही स्टेनोग्राफर वो उर्दू में कंपोज कर दे तो वही ऑर्डर बहुत खूबसूरत अंदाज में टाइप होकर निकल आएगा और हम पढ़ सकते हैं। तो साबित क्या हुआ कि प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं है, लिखने में नहीं है, उसको कंपोज करने में। इसी तरह कोई एक लफ्ज नहीं, कोई एक लफ्ज नहीं जिसको हम उर्दू में एक्सप्लेन ना कर सकते हो। अब मुझे क्लियर नहीं मेरी बात आ रही है कि नहीं? तो जुबान प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तहत इसको रखा हुआ है। बल्कि मैं इसमें ये भी इजाफा करूंगा कि वो रूलिंग क्लास जो 1-2% लोगों पे मुश्तमिल है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस एलीट को ऊपर इक्तदार में रखने के लिए और की पोस्ट में रखने के लिए बाकी तबके को महरूम रखा हुआ है। आप करके देखें, अगले साल सीएसएस के टोटल एग्जाम अगर उर्दू में कर दें, फिर देखें कि क्या सिर्फ एचएसएन और गवर्नमेंट कॉलेज के लोग सिलेक्ट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नॉलेज एक डिफरेंट चीज है और जुबान एक डिफरेंट चीज है। फिर डीआई खां से, बुनेर से और हैदराबाद से और चीचों की मर्जिया से भी बच्चे आके सिलेक्ट हो सकते हैं और इन जगह पे, इन सीटों पे आ सकते हैं। तो ये मेरी गुजारिशात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा सर खुर्रम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम लोग बात करें कि उर्दू की इम्प्लीमेंटेशन की पाकिस्तान में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारी जो एकेडेमिया है, उसके अंदर वो उर्दू में अवेलेबल ही नहीं है या पढ़ाया ही नहीं जा रहा। मतलब हार्डली कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है जिसमें आपको सीआरपीसी सीपीसी उर्दू में पढ़ाया जा रहा हो। ये मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूँ। लाइकवाइज इफ यू गो टुवर्ड्स कानून शहादत या फिर कुछ और, मतलब जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इवन उसको भी अगर आप सेपरेट पढ़ना चाहो तो वो आपको ट्यूटोरियल्स वीडियोस अवेलेबल होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, इवन एचईसी उर्दू में ये चीजें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए व्हाट वुड बी द, मतलब योर सजेशन, और क्या ये चीजें हम लोग के इसको ओवरकम कर सकते हैं? एक जो ऑलरेडी डोमिनेंट लैंग्वेज है इंग्लिश, उससे जब हम उर्दू में आएंगे तो क्या, एक तो कोशिश हम लोग एज अ लीगल टीम या फिर एज अ लीगल फर्टर्निटी हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, और उसके आउटकम्स आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे? वुड देखिए पाकिस्तान बात अडॉप्ट दैट,
और ये सारी चीज जो पहले चल रही है वो भी बिगड़ जाएगी? भाई बात वही आ गई है जो पहले कि हमने अपने रूट से पहले, रूट्स को हमने ठीक है पहले अपने घर से शुरू करना है, ठीक है ना। तो अभी जहीर भाई बात कर रहे थे तो मैं भी ये कह रहा था कि लिखने का प्रॉब्लम है, जुबान का प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसा कि जो मैंने मिसाल दी थी तो वो लिखने की बात की थी, कि जैसे उर्दू अच्छी बोली जाती है वैसे लिखनी भी चाहिए। मेरा ये स्टांस था उस टाइम पे भी। तो शायद मैं अपना वो पूरा तरह उनको मैं ब्रीफ नहीं कर सका, कि जैसे उर्दू अच्छी बोली जाती है वैसे लिखनी भी चाहिए, और हमारी कोर्ट्स में भी। और आपने जो सवाल था कि हमारी सीआरपीसी पीपीसी, अब देखिए ना बात ये है कि 100 साल, 200 years ओल्ड सारा हमारा ये सारा सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है ना। अब सुना है अभी कुछ भी मैंने पढ़ा था टीवी पे भी कि रिफॉर्म्स आ रही हैं, तो वहां पे ये हुकूमत वक्त का काम है, इस पे काम किया जाए। अभी जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, हमारे बड़े कम्पिटेंट लॉयर हैं, और वो बैठे हैं वहाँ पे, उस पे लॉ की रिफॉर्म्स आ रही हैं। तो हम एक सजेशन दे सकते हैं वहाँ पे कि जो भी आप लॉ बनाए उसको सारा उर्दू में किया जाए। देखिए हमारा पीपीसी जो है, मैंने खुद देखा है, मैंने पढ़ा भी है, हमारी जितनी पुलिस है वो इंग्लिश पीपीसी नहीं पढ़ती। आप कभी थाने जाएं, आप देखें जाके, वहाँ पे पीपीसी की जो बुक्स पढ़ी होती हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो वो पीपीसी को उर्दू में ही पढ़ते हैं। कई मौके आए हैं कि हमारे पास पुलिस वाले आते हैं एविडेंस के लिए, हमसे पूछते हैं जी ये लिखा हुआ है तो इंग्लिश में है, तो आप हमें इसको ट्रांसलेट कर दें। तो पीपीसी की और सीआरपीसी की बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। देखिए हमारे बस जो हमारा जो पैटर्न है स्टडीज का, एचईसी का और यूनिवर्सिटीज का, वो सब इंग्लिश मीडियम में है। जब हमने लॉ पास किया तब वो 2005 में, तब तक तो था कि आप सारे पेपर्स उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिफॉर्म्स आ गई कि जी आपने सिर्फ, एक था वो एक सब्जेक्ट के अलावा, जूरिस्प्रूडेंस थी, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अलावा आपने जितनी अटेम्प्ट करनी है आपने इंग्लिश में करनी है। तो 2005 से पहले यूनिवर्सिटीज में जो पेपर्स होते थे वो सब उर्दू में होते थे। स्टूडेंट की चॉइस थी कि वो 100% इंग्लिश में अटेम्प्ट करता है या हाफ इंग्लिश में करता है या हाफ उर्दू में करता है। तो ये रिफॉर्म्स आती रही है बाय टाइम बीइंग। तो ये थैंक यू हुकूमत सर। वक्त का काम है। हाँ। ओवर टू यू सर अब्दुल्ला। Thank you, Adil. I will address my question to Mr. Ali Haider as well, especially इस चीज के ऊपर कि सर अब थोड़ा ये शिफ्ट होएगा सवाल इस चीज के अंदर, and it might sound against Urdu and national language perspective, कि जो अब हम ट्रेनिंग्स देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता 2020 की जजमेंट के बाद से, 6/1/2020, जिस तरह सीलो आया, लॉगेट आया, बीबीसी आया, एंड आपकी सारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने कहा कि हमने अब ट्रेन भी कर रहे हैं लॉयर्स को। तो जो अब नया सारा गार्ड आ रहा है वकला का, लॉ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग होती जा रही है, सर उसके अंदर हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू फाइंड द बैलेंस कि आपने उनको उर्दू में भी बहुत चीज़ सिखानी है और आपने उनको इंग्लिश की भी कॉम्पिटेंस देनी है। बिकॉज डिफरेंस क्रिएट होता है आपके ग्रेजुएट्स के अंदर। जो लोकल प्रोग्राम से कोई ग्रेजुएट होकर आ रहा है 5 ईयर प्रोग्राम से, ही माइट बी अ बिट बेटर इन सर्टन एरियाज जहाँ पे उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आपको कोई फॉरेन ग्रेजुएट है या जो कोई बंदा जिसका बैकग्राउंड ओ एंड ए लेवल्स का है, उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, उसके लिए इंग्लिश ज़्यादा आसान होगी, इट इज इज कॉमन लैंग्वेज बोलने के लिए, बात करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए। फिर उसके अंदर क्या आपको लगता है कि व्हाट इज द राइट बैलेंस, और उसको किस तरह से एडहियर किया जा सकता है ट्रेनिंग्स और ऑन करंट प्रोग्राम्स के अंदर जो आपके हो रहे हैं बार काउंसिल्स के अंदर? अच्छा यार, आपका सवाल का जवाब देने से पहले ना, एक इंडियन जूरिस्ट हैं, बहुत वेल रिस्पेक्टेड, वेल रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलियस नरेमान। उनसे किसी हिंदू नेशनलिस्ट ने पूछा जी कि ये आपके जितने भी कवानीन हैं अंग्रेजी के अंदर हैं, ये फॉरेन लैंग्वेज है। जैसे ही उनके मुंह से निकला ना फॉरेन लैंग्वेज, तो पॉलियस नरेमान उन्हें रोक के कहते हैं, और कहते हैं कि इंग्लिश इज नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज, इट्स द लैंग्वेज ऑफ लॉ। द थिंग इज दिस कि हम लोग दो इश्यूज को कंफ्यूज कर रहे हैं मेरी हम्बल सबमिशन के मुताबिक। एक उर्दू एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सैंक्टिटी, कवानीन का उर्दू जुबान में बनना, फैसलों का उर्दू में लिखा जाना, खुशखती से लिखे जाना, ये एक डिफरेंट डिबेट है। और लॉ की इस वक्त मौजूदगी पैरेलल जुबान के अंदर मौजूद होना, जिसमें अंग्रेजी बिलखसूस हो, उर्दू में भी कुछ अवेलेबल है, तो इसका होना और इसके तहत के सिस्टम का चलना, वो उसकी एफिकेसी के ऊपर है। माय पॉइंट इज कि उर्दू को बिल्कुल होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म का काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम ना मैंने करना है, ना
जो ऑनरेबल स्पीकर्स बैठे हुए इन्होंने करना, ये बेसिकली आपके लेजिस्लेटर्स का काम है कि अगर कोई स्टैट्यूट पास होता है लेजिस्लेशन से, तो उसकी पैरेलल ट्रांसलेशन मौजूद होनी चाहिए, पब्लिक के लिए भी और लॉयर्स के लिए भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हम्बल से बहुत छोटे से, और जिस तरह शायद जहीर साहब ने कहा कि उनके उनके मौजूदगी में मेरा एक्सपीरियंस तो एक खाक के बराबर भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप हाई कोर्ट की बात करें, आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी की बात करें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर आप उर्दू जुबान में सही और खलीस आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कमतरी के लेवल पे नहीं देखा जाता, इनफैक्ट अप्रिशिएट किया जाता है। द कंडीशन इज कि आप सही उर्दू जुबान का इस्तेमाल कर रहे हो। जिस तरह हम टूटी फूटी, मेरे जैसे नालायक लोग अंग्रेजी भी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह कुछ मेरी तरह के नालायक उर्दू भी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जस्टिस फजल करीम साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एस एम जफर साहब ने जब अपनी माय फेमस केसेस वाली बुक लॉन्च की ना, तो उसके अंदर उन्होंने एक एग्जांपल दी, और वो एग्जांपल बड़ी रेलेवेंट बनती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 199 के अंदर कन्वेंशनली तो लिखा नहीं हुआ कि रिट्स हैं, वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन होती है जिसको रिट ऑफ सर्चोरारी कहा जाता है। तो एस एम जफर साहब कहते हैं कि एक वकील साहब आज अदालत में आर्ग्यू कर रहे थे कि सर मैंने आपके सामने रिट ऑफ शोरा शोरी फाइल की है। नाउ द पॉइंट इज कि सही उर्दू का इस्तेमाल करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करना। अच्छा, अब रही बात जो आपने बात की है कि सोसाइटी के अंदर इसको होना चाहिए। अब आप ट्रेनिंग से देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद, अभी कभी आप जरा यानी इसके ऊपर, मैं अगर उस ट्रेनिंग्स के ऊपर किसी को पाइनियर कहता हूं, तो व्हेन इट कम्स टू बीवीसी, वो आपका चेंबर हो सकता है, वो लाहौर से मलिक अहमद कयूम साहब का हो सकता है, कि उन लोगों ने बहुत काम किया हुआ है बीवीसी के ऊपर। तो अहमद को जब भी आप देखेंगे उर्दू में आर्ग्यूमेंट करते हुए, यानी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हुए, उर्दू के अंदर ही वो सारा कुछ करते हुए, तो ये एक बैलेंस जरूर वहां पे मेंटेन किया जा रहा है कि जितने भी वहां पे ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं वो उर्दू के अंदर ही ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे आपका स्टैट्यूट इंग्लिश के अंदर है, तो आपको कोड स्विचिंग करनी पड़ती है। और रही बात अदालतों के अंदर, तो आप कोड स्विचिंग करते रहते हैं, लेकिन कोड स्विचिंग में कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। और उसके साथ साथ अगर आप 251 की बात करें, तो उसके मुताबिक तो लॉज को बनना चाहिए, लेकिन वो लॉज हमारे सामने उर्दू में ट्रांसलेट होके आएंगे, तो ही उसको जिसे कहते हैं ना कि वो उनका उनकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। इनफैक्ट ये इस कदर एम्बेडेड हो चुकी हुई है आपकी, जिसको हम फॉरेन लैंग्वेज कैटेगराइज करते हैं या कॉलोनियल लैंग्वेज कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं बड़े अदब के साथ इस बात को बड़े वसूख से कर सकता हूं कि इस वक्त 90% जजेस एक पैराग्राफ भी खलीस उर्दू में, वो जिसे कहते हैं ना, वो ऑर्डर नहीं लिखवा सकते। वो जिसे कहते हैं ना, वो डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट पैराग्राफ लिखवा देते हैं, जो फैसलों के अंदर ग्रामर की गलती होती है उनके उर्दू के फैसलों के अंदर। सो इस वजह से वो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, वो इसको नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, सबॉर्डिनेट जुडिशरी से इसको ऊपर लाना चाहिए, और बकायदा इसके ऊपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जुबान के लिए उसकी कोहेरेंस और उसका रब्त को कायम रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे ही कोहेरेंस और रब्त टूटेगा, तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होगा, जैसे अंग्रेजी में चेंज होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि अगर 251 को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करना है, तो फिर लेजिस्लेशंस भी पैरेलल उस जुबान में आनी चाहिए। फिर सबॉर्डिनेट जुडिशरी से लेके एपेक्स कोर्ट तक फैसलों को भी उर्दू में आना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने मुझे इस वक्त कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने एक फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का पढ़ा है कि उन्होंने उर्दू में टाइप करवाया हुआ था। वो फैसला अंग्रेजी में भी अवेलेबल था, उर्दू में भी अवेलेबल था। सो जो जो अपनी अपनी हिम्मत और काविश के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। बट मेरा ये ख्याल है बड़े अदब के साथ कि अगर एकदम से आप इसकी स्विचिंग पे चले जाते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल का सामना पेश करना पड़ेगा वकला को भी और जज साहबान को भी। अगर आपने पब्लिक को टारगेट करना है, तो लेजिस्लेशंस को उर्दू में ट्रांसलेट कर देने से वो हिस्सा तो या वो ऑडियंस तो आपकी सेटिस्फाई हो सकती है। मैं आपसे एक फॉलोअप करूंगा इसी कॉन्टेस्ट के ऊपर, इफ यू डोंट माइंड, कि इज देयर एन इशू एक्सेप्टेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक जुबान की, या वो इंग्लिश हो या वो उर्दू हो? बिकॉज इंग्लिश हम कह सकते हैं सीन एज एन एलिटिस्ट लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इन सर्टेन एरियाज,
कि ना ये बहुत पॉश लैंग्वेज है, इस तरह का बंदा बोल रहा है, बाहर से पढ़े आए हुए हैं, उस तरह की इमेज हम बना देते हैं। उर्दू का यार बंदा बात करते हैं, कहते हैं इज अनकल्चर्ड, इज नॉट दैट, इज नॉट कॉम्पिटेंट, व्हाट नॉट, इस तरह की इशू बनते हैं। स्पेशली अगर इफ यू टॉक इन प्रोविंशियल लैंग्वेजेस, बंदा सिंधी में बात करे, पश्तो में करे, पंजाबी में करे, तो कहते हैं पता नहीं कहाँ से उठ कर आ गए हैं। तो ना वो एक स्टिग्मा अटैच होता है विद लैंग्वेजेस। तो उसका सर कितना इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले होता है इन चीजों के अंदर, इफ यू कैन एक्सपैंड ऑन दैट एज वेल। ये मैं आपको ना इस बात का जवाब इस तरह देता हूँ कि मैंने अपने छोटे से एक्सपीरियंस में 3 लोगों को बड़े खूबसूरत उर्दू में आर्ग्यूमेंट करते हुए सुना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को मैंने सुना हुआ। और जब आप लीटेस्ट ऑफ द लीटेस्ट लैंग्वेज की बात करेंगे तो उनकी अंग्रेजी जुबान पे कमांड भी बहुत जबरदस्त थी। सो मैंने उनको भी देखा हुआ है। मैंने उसके बाद जिस तरह मैंने भी उनका डॉक्टर बासित साहब का नाम लिया, फिर AK डोगर साहब को भी मैंने सुना हुआ है। और ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि जब ये उर्दू में आर्ग्यूमेंट्स करते थे तो अदालत के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। सो अगेन बात वही आ जाती है, इट्स नॉट अबाउट, आई मीन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने साइल के लिए एक अच्छी जुबान के अंदर जज को एड्रेस कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं कि मेरा क्लेम क्या है और किस किस्म का मुझे लीफ चाहिए, फिर चाहे वो पश्तो हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वकील का ज्यादा कंसर्न मेरे मुताबिक बड़े हम्बली कि वे कंसर्न अपने साइल के लिए रिलीफ लेना होता है। सो उस वक्त इस चीज के ऊपर आपका दिमाग भी ऑनेस्टली पॉन्डर नहीं कर रहा होता, सोच रहा होता कि जी मैं कौन सी जुबान के अंदर बात कर रहा हूं। उस वक्त आपका टारगेट, आपका फोकस ही होता है। अब रही बात जो आपने कहा कि जी एक्सेप्टेंस का इशू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल है इशू। इशू इस वजह से है कि जिस तरह अभी खुरम साहब ने एक बात की, तो उसके बाद शाहिद जहीर साहब ने बात की कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी बोले। यानी मैं घर के अंदर अपने अम्मा अब्बा के साथ पंजाबी में बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी हम दोनों उर्दू में बात कर रहे हैं, मुलाजमीन के साथ जो हाउस हेल्प है उसके साथ पंजाबी में बात हो रही है। तो वो आपने क्लास के साथ उसको अटैच कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक्सेप्टेंस के अंदर इशू आता है। वरना व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि हम लोगों ने ब्लैक रोब पहना हुआ है, आई बिलीव कि वी आर द मोस्ट यानी रिकग्नाइज वेल एस्टैब्लिश लर्नर पीपल। तो उधर वहां पे अगर बेशक आप उर्दू में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुफस्सिल की जितनी वकालत है, मुफस्सिल मुफस्सिल मींस जितने भी आपके सबर्ब्स हैं, तहसील, सब तहसील लेवल पे, और आपके छोटे अजला के अंदर जितनी भी वकालत है, वहां पंजाबी में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वहां पे तमाम के तमाम कत्लों के फैसले पंजाबी के आर्ग्यूमेंट्स पे होते हैं। वहां पे शहादतें पंजाबी में लिखी जा रही होती हैं। इसी तरह अगर आप सिंध वाली साइड पे चले जाएं तो वहां तो जिस तरह अभी खुरम साहब ने आपको बताया कि वो FIR ही सिंधी के अंदर होती है। वो आपको उसको ट्रांसलेट करना एक प्रॉब्लम होता है। बट इशू इज कि एज लॉन्ग एज आप उसको जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जिस तरह एग्जांपल दी थी, खुरम साहब ने कहा कि जी वो फैसले पढ़े नहीं जा रहे, तो शायद जहीर साहब ने कहा जी कि वहां पे फैसलों के रस्मुल खत का इशू है, जुबान का इशू नहीं है। इसी तरह अदालत के अंदर आपके उस जुबान को बयान करने का प्रॉब्लम है, ना कि उस जुबान के साथ प्रॉब्लम। वेरी वेल सेड सर। आई थिंक दैट इज एन ओपिनियन दैट माइट बी कंट्रोवर्शियल का थोड़ा बहुत देखने के ऊपर, बट वेरी वेल सेड रिगार्डलेस। आई थिंक और अब हम दूसरे थोड़ा ने सा कहा था ना कि ब्यूटीफुल आई टुक द पाथ लेस ट्रेवल्ड बाय वॉकिंग बाय द वुड्स। हम थोड़ा सा एड्रेस करेंगे सब व्यूअर्स के लिए भी, बिकॉज दे हैव सम क्वेश्चंस वेल, मेरे चैट बॉक्स में थोड़े बहुत आए हुए हैं। सर हमारा एक क्वेश्चन है दुरेश शाह बलोच के साथ से, एंड दिस इज टू एड्रेस टूवर्ड्स मिस्टर शाहिद जहीर, कि सर देर आर मेजोरिटी पीपल जो डिफरेंट प्रोविंसेस में रहते हैं जहाँ पे उर्दू इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज। तो उनकी ट्रेनिंग का ये मसला नहीं था कि वो उर्दू इंग्लिश में करें, उनको होता है कि दे आर मोर अकस्टम टू देयर ओन प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। सर उसका क्या इम्पैक्ट बनता है विद दी लार्जर प्रिंसिपल जो आजकल अभी डील कर रहे हैं उर्दू इंग्लिश के अंदर, कि उस डिबेट में वेयर डू प्रोविंशियल लैंग्वेजेस स्टैंड, और उनको कितना हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए इस तरह की लीगल साइड के ऊपर, स्पेशली बिकॉज जनरली तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट एज लॉयर्स एज लिटिगेंट्स हमारे ऊपर क्या ओनस है कि हम प्रेफरेंस किसको ज्यादा दिया करें इस तरह की चीज में। सर प्लीज। इस पे थोड़ी सी बात मैंने पहले की थी, लेकिन अब मियाँ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं उससे पूरी एग्री करता हूँ। यानी इस पे हम कंसेंसस तो नहीं कह सकते, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात पे तो कोई इख्तलाफ नहीं
कि हमारी कौमी जुबान उर्दू ऑल ओवर द कंट्री समझी जाती है और अप्लाई भी की जाती है। अब फर्क ये रह गया है कि क्या इस जुबान की एप्लीकेशन जुडिशल सिस्टम में होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। आपका जो सवाल है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, कौमी जुबानें हैं, उनको इसके साथ कैसे रबत में रखना चाहिए और फिर कौमी जुबान का नफाज किस तरह हो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सादा बात है कि जो कौमी जुबान है उर्दू, उसको सरकारी जुबान के तौर पे अप्लाई होना चाहिए और उसमें कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोकल जुबानें हैं, हर जुबान का कल्चर भी होता है, तहजीब भी होती है, और वो बहुत इनरिच और फर्टाइल भी होती है। जैसे हमारा दावा है, और मेरे ख्याल से मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि पंजाबी इतनी रिच जुबान है। हमारा जो क्लासिक है, जो हमारे सूफिया का कलाम है, जो तहजीबी रिवायात है हमारी पंजाबी में, वो इतनी रिच है कि वो इंग्लिश या उर्दू से किसी भी दर्जे से कम नहीं है। लेकिन जब कौमी सतह पे हम बात करेंगे तो हमारा आज का फोकस सिर्फ है जुडिशियल सिस्टम पे, कि जुडिशियल सिस्टम में कौमी जुबान की एप्लीकेशन और इतलाक किस तरह किया जाए। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है, जैसे अभी मियाँ साहब ने बात की कि मुजाफाती सतह पे उर्दू में भी बहस हो रही होती है और पंजाबी में भी हो रही होती है। तो मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, बहुत सारे ट्रायल में लोकल जगहों पे जाके चूनिया पतोटी और इस तरह की ऐसी तहसीलों में भी किए हैं। तो वहां पे सब कुछ उर्दू में होता है, वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। एक बिल्कुल देसी जुबान बोलने वाला बाबा, जिसकी अपनी जुबान चाहे कुछ भी हो, पंजाबी के भी बहुत सारे एक्सेंट है और हर 10-15 मील के बाद पंजाबी बदल जाती है, लेकिन वो उर्दू प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है। तो मेरी गुजारिश यह है कि अगर वही टाइपिस्ट और कंपोजर जो इंग्लिश टाइप कर रहा है, और जैसा वो 10 मिनट लेके उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर वो कंपोज करता है, अगर वो डायरेक्टली उर्दू में कंपोजिंग करने बैठ जाए तो आधा वक्त बच जाएगा। रहा मसला, ये साहब ने एक और बात की, उसको भी मैं आगे बढ़ाता हूँ बड़े अदब के साथ, कि अभी वो स्किल्ड लोग, अभी वो एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। तो सर वो इसलिए मौजूद नहीं है कि आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि ये स्टेट की ड्यूटी है और उसको वो एड्रेस करे, कि स्टेट अगर ये नाफिज कर दे कि इन इन जगहों पे सारी ड्राफ्टिंग, सारी कंपोजिंग उर्दू में होगी और एविडेंस डायरेक्ट रिकॉर्ड होगी उर्दू में, ये मुश्किल नहीं है। वो एक्सपर्ट बंदा, वो कंपोजर जो कंप्यूटर पे बैठ के, अब हर कोर्ट में कंप्यूटर अवेलेबल है, मुश्किल नहीं है, वो उसी स्पीड से उर्दू में कंपोज करेगा। जैसे हम बाहर जाते हैं कचहरी में बैठ के बहुत स्पीड से कंपोजन करने वाले बैठे हैं, और मुझे 100% यकीन है कि जैसा बहुत आसानी से उर्दू लिखवाने लग जाएंगे, क्योंकि अब उनका मुहावरा नहीं है, इंग्लिश जुबान में और सॉफ्टवेयर में फिट है। तो लेकिन ये ऐसा मुश्किल मरहला नहीं है कि वो स्विच ओवर ना किया जा सके। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बगैर किसी फियर के, बगैर किसी कॉम्प्लेक्स के इसका इतलाक होना चाहिए, और ऑब्वियसली वो स्टेट ने करना। अगर हाईकोर्ट की सतह तक भी इसको कंपलसरी बना के किया जाए तो वो जबर नहीं होगा, ढल जाएगा। अब उन मेरे भाइयों का मसला जो इंग्लिश मीडियम है और ए लेवल ओ लेवल करके जो एक्सटर्नल प्रोग्राम्स पढ़ के आए हैं, तो उनके लिए भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी मेरा एक अजीज बच्चा जर्मनी में गया था पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप एग्जाम जिस जुबान में मर्जी दें, इंग्लिश में देना इंग्लिश में दे, लेकिन जर्मन जुबान का सीखना कंपलसरी है। अब मेरा और मसला भी एक मियाँ साहब ने हल कर दिया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मसला भी उन्होंने हल कर दिया कि तरक्की और चीज है, जुबान और चीज है, नॉलेज और चीज है। तो 4 मुल्क पहले भी गिने जा चुके, क्या फ्रांस ने तरक्की इंग्लिश में की, चाइना ने तरक्की इंग्लिश में की, रशिया ने इंग्लिश में की, और जापान जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्या उसने तरक्की इंग्लिश में की। यूरोप में पूरी यूरोपियन यूनियन ने रिफ्यूज कर दिया कि हमने किसी न्यून साइन बोर्ड को और सड़कों पे लिखे हुए किसी बोर्ड को इंग्लिश में नहीं लिखना, अपनी जुबानों में लिखेंगे। जो दोस्त वहां विजिट करके आए हैं वो फ्रांस में जाए, फ्रेंच में लिखा है।
जर्मन में जर्मनी में लिखा है, टार्जन में। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है पब्लिक की फैसिलिटी के लिए आइन की जो जुबान है, जो आइन ने हुक्म दिया है आर्टिकल 251 में, क्या उस हुक्म को हमने माना? तो मेरी गुजारिश ये है कि जो 2015 में आके जैसे जवाल ख्वाजा ने कहा कि हमने उस हुक्म को नहीं माना, तो उस हुक्म को हमें अभी मान लेना चाहिए। और हम एक अच्छी कौम और एक पढ़ी लिखी कौम तभी बनेंगे जब ये सारा नॉलेज, जैसे कि अभी मेरे भाई ने कहा, फौरी ट्रांसलेट होके हमारी अपनी जुबान में आएगा। हमारा वो वक्त बच जाएगा जो हम इंग्लिश सीखने में लगाते हैं। हाँ, इंग्लिश बहुत अहम जुबान है। अब अब ये मसला भी उन्होंने हल पहले कर दिया कि ये डिबेट नहीं है कि हम इंग्लिश को लेट डाउन कर रहे हैं या हम इंग्लिश के खिलाफ बोल रहे हैं। इंग्लिश थैंक यू बड़े सो मच हाजिर सर। जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करें, लेकिन वो करें जहां इसकी जरूरत है। अगर आपने फॉरेन सर्विसेज में जाना है तो इंग्लिश का 10 सीखें। अगर आपने कोई ऐसा काम करना है तो आप इंग्लिश जरूर सीखें, बेहतर से बेहतर सीखें, अच्छे एक्सेंट के साथ, अच्छे विजडम के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ सीखें। लेकिन आज का हमारा मौजूद है थैंक यू कि सो मच सर। जुडिशियल सिस्टम को किस जुबान में रखें। एक आखिरी लाइन, ये जुडिशियल श्योर सर। सिस्टम किसके लिए? साइल के लिए, पब्लिक के लिए। और इसलिए वो जुबान लेके आए जो पब्लिक के लिए आसानियां बनाए। थैंक यू। थैंक सो यू मच सो मच सर। सर। हमारी ऑडियंस के ना कुछ क्वेश्चंस हैं, सो वी वुड लाइक कि वो आपसे खुद डायरेक्टली क्वेश्चन पूछें आपसे, बाकी वो जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स हैं। सो अभी कुछ, सो हनीफ आर यू हियर? आदिल, आई थिंक उनका आप सवाल हनीफ आर पूछो, यू तो आई हियर? थिंक चैट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप कैन अच्छा एड्रेस कर लो सर, स्पीकर्स वो के साथ। सर वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि कोई उर्दू की लीगल लैंग्वेज बुक्स आप रिकमेंड करें जितने स्पीकर्स हैं, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद अ नॉर्मल उर्दू और जो लीगल उर्दू है, जो जिस तरह अभी प्रोफेशनल उर्दू हम लोग बात करें ऑफिस लैंग्वेज की, तो जो टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स यूज होते हैं वो टोटली डिफरेंट है। सो कोई ऐसी बुक्स, ऐसी कंक्रीट मटेरियल जिससे वो मतलब ये नॉलेज इजीली गेन कर सके और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आई थिंक इस पे थोड़ा सा मैं भी इंटरवीन करना करना पड़ेगा, बिकॉज वी रनिंग लो ऑन टाइम ऑन दिस मीटिंग एज वेल। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गई है। आई विल आस्क द स्पीकर्स दैट अगर आपके पास कोई इस तरह की बुक्स हैं लीगल लैंग्वेज उर्दू के ऊपर, या फिर जनरली उर्दू के बारे में आपको कोई बुक्स हैं जो रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, तो प्लीज आप काइंडली ग्रुप में मेंशन कर दीजिए, मुझे बता देगा। आई विल शेयर इन द ग्रुप एज वेल। एंड विद दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई विल आस्क द ऑडियंस कि अगर आपके भी कोई फर्दर सवाल हैं तो आप काइंडली ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, एंड आई एम श्योर हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड फॉर कंक्लूडिंग नोट, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड कि हमारे इतने ज़बरदस्त लॉयर्स, ज़बरदस्त थिंकर्स, ज़बरदस्त स्पीकर्स आज इस वेबिनार में प्रेजेंट थे हमें गाइड करने के लिए, बताने के लिए। एंड एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिबेट हुई है यहाँ पे रिगार्डिंग दी स्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड प्रोविंशियल लैंग्वेजेस एज अ होल पाकिस्तान के अंदर। तो सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर शाहिद, मिस्टर खुरम एंड मिस्टर अली हैदर फॉर देयर टाइम एंड फॉर देयर नॉलेज, एंड जितना उन्होंने यहाँ पे हमारी इल्म में इजाफा कर दिया इस चीज़ के बारे में। And with that, we will conclude our webinar, and inshallah, we will host you next week for another webinar as well. Sir, thank you so much to the audience. Thank you as well. Everyone, take care, please. Thank you, and Allah Hafiz.